Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. So I am your career counselor Sagar Anand and we are a firm which tries to tell you कि दुनिया में कितने तरह के careers हो सकते हैं. In addition to that, we do a lot of reviews on colleges and also in exams. Right now, if you are a student and looking for an engineering college, you would be aware कि देखिए JEE mains is over now. JEE mains is over. फोर्थ अटेम्प्ट भी हो चुका है. WB JEE की काउंसलिंग अभी चल रही है. Plus, I would like to inform you if you have any doubts, we do Sunday ko we do live sessions. Sunday को we do live sessions which are free of cost, जिसमें हम आपका प्रोफाइल एनालाइज करेंगे, एंड आपको हम लोग उस प्रोफाइल के हिसाब से रेट करेंगे कि जो आपके कॉलेजेस हैं, आपके कॉलेजेस को रेट करेंगे प्लस आपके कोर्सेज को रेट करेंगे. एंड दिस इज ऑन संडेज, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. If other than Sunday you want to join us, we charge for the same work of profiling and rating your colleges and courses and helping you in your decision making, and also we try to analyze the risks which you have because of the future prospects. If you want to do all this without on us any other day, we charge rupees 350 for 30 minutes, and we charge rupees 500 for 45 minutes. In addition to that, we also have a career test, a career personality test, जिसमें हम आपकी पूरी पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे एंड वील गिव यू 10 ऑप्शंस, nearly 10 options of careers according to your personality, which is based on Jung's personality theory, and this we charge 750 rupees, which normally the market rate for these services are 2000 to 4000 rupees per person. So these are our services. You can contact us on this number 7905238907 and try to WhatsApp us and we'll send you our services. In this video, what we are doing is we are looking deeply into COMET-K. COMET-K is an exam for basically for students taking admission in Karnataka, and this is an all India exam. This is for all the students from India, and we will look into the top colleges rank wise. We will look into how what are their placements. We will look into marks versus rank, that how much marks have you to score versus the rank which you will get. We will look into the placement statistics of the top 15 college. Before going any further, do subscribe to our channel because it really helps us, and also press the notification bell. I think so this is my bell, and do press the notification bell because then only it is any point subscribing. And plus also do gives up a thumbs up, a like, so that we can have a good algorithm in YouTube. Thanks a lot. So let us start very fast and let us see the total marks in COMET-K is 120 marks. There is no negative marking. And if you look into the call mark ranges, if you can score a top score of 160 to 180, that is like almost you score everything. So you get a rank of 1 to 10. If you score something between 150 to 160, you get a rank of 50 to 10 to 50. But now the important part comes, if you are getting something between 130 to 140, this is like the top marks for getting the top colleges. This is the top mark for getting the top colleges, and you get a rank of 150 to 400. And RV is the topmost college of COMET-K. And let us look into COMET-K colleges, this placement for this. RV can be compared to something college like Thapar or even BIT Misra statistically wise. Okay, do not tell me कि आपको comments में लिखें कि सर आपने कैसे compare कर दिया, and this is much more reputed, BIT Misra is much more reputed, Thapar is much more reputed. We are just talking about statistics, and statistics wise this can be compared. RV is at the rank of 70 की rank पर ये है NIRF में, and there's also Times rank and Outlook rank. You can look into that. Placement percentage जो इनका है, that is 85% placement with a median salary of 8 lakhs per annum. So this is very high. This is almost equivalent with थापर की जो है करीबन 7 लाख के करीब है, और BIT मिश्रा की ऐसी 8 से 9 लाख के करीब है. So this is almost equivalent to that. एंड देन अगर आप बिट्स पिलानी की देखते हो तो बिट्स पिलानी की जो है 12 लाख चली जाती है,
एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली या डीटीयू दिल्ली या एनएसआईटी दिल्ली, ये सब एक रेंज में आते हैं। ये लोग सब लोग 10 से 12 की इनकी मीडियन सैलरी होती है। और अगर आप इसका सीएस का मीडियन देखते हो, अगर आप इसका सीएस का मीडियन देखते हो तो सीएस का मीडियन में आराम से ये जो है 10 लाख के करीब करीब रह रहा होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरवी इज द टॉप मोस्ट कॉलेज अगर आपको लेना है। If you are scoring somewhere between 110 to 120, you get a rank of 900 to 1800. In with this range, the top college is MS Ramaiah. There's a gap between MS Ramaiah and RV in terms of placement. Though the rank of MS Ramaiah is at 59 in an IRF, the placement percentage of MS Ramaiah is 80%, a little shade lesser than RV, and the median salary for placements is 5.2 lakhs per annum, and this can be checked on an IRF website. And the median salary for CS is around 6 LPA, so this is not a bad bet if you're getting into COMEDK. If you score somewhere between 100 and 110, you get a rank of 1800 to 3300. And if you get this 1 minute, let me just change. If you get this rank, you get colleges like Dayanand Sagar College of Engineering, a very good college. This is ranked at 126, and this has a percentage placement of 86% placement. Please, where you can verify these facts on NIRF or maybe shiksha.com. And then this has a median salary of 5.8 lakhs per annum. काफी अच्छी मीडियन सैलरी है। और अगर इसके सीएस की मीडियन सैलरी की बात करें तो 6 to 7 लाख की जॉब आपकी लग जाएगी, which is really good. Then in this range you have Sir M Vishwesharya Institute of Technology, and the placement percentage for this is 64% placement percentage, and the median salary is 3.7 lakhs per annum. So this is now, if you look at these statistics, this is a little on the lower side, but again this is a very reputable colleges. Even for this is very famous for civil engineering. So if students wish to take here, they can take here. This is a very good college. Okay, let us look into, if you score somewhere around 90 to 100 marks, you get a rank of around 6,000. And the college that you get here is BMS. This is again a very top college. This is ranked at 73, and BMS has a percentage placement of 71%, and it has a median salary of 3.5, which is again on a little bit on the lower side. Then you have BIT, Bangalore Institute of Technology, very reputable college in Karnataka, and a lot of people take it. This is ranked in the range of 200 to 250, 200 to 450 की rank में ये आता है ये. And BIT has an average placement of 4.4, median placement of this much, and an average placement, this has an average placement of 6.5. This is average, so average higher है, but median is a better indicator. That means 50% बच्चों को इतना या इसके ऊपर मिला है. एंड BIT का जो हाईएस्ट जाता है अराउंड 15 लाख के करीब, 15 लाख से करीब जाता है. इसी में एक कॉलेज है सदानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसके डेटा मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन लुक इनटू. इफ यू स्कोर समवेयर बिटवीन 80 to 90 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट 50% के करीब अगर आप स्कोर करते हो तो यू स्कोर अराउंड 66,000 to 10,000. ये अगर आपका इतना भी मार्क्स आ जाता है, तो जो आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं. तो अगर आपका वीआईटी में नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से कॉलेजेस हैं ये, अगर हम किससे कंपेयर कर सकते हैं. सॉरी, अगर आपका वीआईटी में नहीं हो रहा है, या मणिपाल में नहीं हो रहा है, या जेआईटी में नहीं हो रहा है, या थापड़ में नहीं हो रहा है, या फिर आप मान लीजिए थापड़ के अलावा फिर निरमा में नहीं हो रहा है, या किसी भी एनआईटी में नहीं मिल रहा है, कोई भी मैकेनिकल या सिविल नहीं मिल रहा है, या ट्रिपल आईटीज में कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर आप मानिए शिक्षा अनुसंधान में कुछ नहीं मिल रहा है, सत्यभामा में कुछ नहीं मिल रहा है, केआईटी में कुछ नहीं मिल रहा है. अगर आप इन सारे कॉलेजेस की बात करें, एंड इवन उसके बाद ये भी है, शास्त्रा भी है, एंड उसके बाद हिंदुस्तान भी है. अगर इन कॉलेजेस में आपको नहीं मिल रहा है, एंड इवन अगर आप लोग को लग रहा है कि भाई हम यूपी के टॉप कॉलेजेस या राजस्थान के टॉप कॉलेजेस
या फिर एमपी के टॉप कॉलेजेस, आप मान के चलिए यूपी, राजस्थान, एमपी के जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, उनसे अच्छा है आपका कॉमेट के कॉलेजेस टिल द रैंक ऑफ 10,000 इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ पीयर ग्रुप, आपका जो आपके साथ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। तो अगर आपका इनमें इनसे मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें जो मैंने कॉलेजेस बताए हैं, अगर इनमें नहीं हो रहा है, तब आपका जो अगर आप 10,000 तक भी रैंक ले आते हो तो आप यहाँ ले लो। आपका अगर यहाँ के भी टॉप कॉलेजेस में हो रहा है और आप यहाँ पे 10,000 तक रैंक ले आते हो, तो मैं कहूंगा आप इनके ऊपर, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर इनको प्रेफर करो बिकॉज ऑफ द लोकेशन। ओके, सो बीएनएम में आ जाते हैं। बीएनएम जो है दिस इज रैंक एट 186 एंड इसका जो है 65% प्लेसमेंट है एंड इसका जो मीडियन सैलरी है 3.5 एलपी। आप मानिए ये जो लोअर के मैं लिख रहा हूँ, जैसे ही मैं ये जो 10,000 और 6,000 रैंक पे जो कॉलेजेस लिख रहा हूँ, इनकी जो मीडियन है, ये राजस्थान, यूपी, एमपी के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका मीडियम होगा। आप एक दो कॉलेज छोड़ दो, जैसे कि आप एलएनसीटी छोड़ दो या जेएसएस छोड़ दो, ये छोड़ दो, उसके अलावा सबका इसी के आसपास होगा। प्लस इनका जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट पैकेज है वो 16 लाख के करीब है। सीएमआर की अगर बात करें, इनकी रैंक जो है 201 से 250 की रैंक में आती है एंड इसका जो हाईएस्ट है दैट इज अराउंड 24 एलपीए, 24 एलपीए विच इज गुड। लेकिन ये देखिए हाईएस्ट बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं होता क्योंकि कम बच्चों को मिलता है। एक अच्छा डेटा इसके पास ये है कि 7 लाख प्लस प्लेसमेंट जो है 100 बच्चों को मिले, 100 स्टूडेंट्स को मिले। सो ये काफी अच्छा है कि अगर आई थिंक सो सीएमआर में अराउंड 700-800 बच्चे तो होंगे ही, तो 700-800 बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट 15% बच्चों को मिल रहा है। तो अगर आप कॉलेज के टॉप 15 में रहते हो तो फिर आपको जो है एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। एवरेज जो इनका रहता है तकरीबन 5.52 लैक्स पर एनएम के करीब रहता है। निटी मीनाक्षी की जो रैंक है वो 128 है। निटी मीनाक्षी का जो मीडियन जाता है अलोंग डिफरेंट ईयर्स दैट कैन रेंज फ्रॉम 3.5 टू 5.5 LPA, so not a bad college to prefer. RNS अगर आप देखते हो, RNS का रैंक 250 to 300 जाता है और this RNS has a highest of 10 to 15 lakhs depending upon different years and RNS में जो median salary रहेगा वो 4 to 6 lakhs per annum रहेगा। तो this is quite good data to take your decision. Let us look into some other colleges. अगर आप इतनी रैंक लाते हो 10,000 to 15,000, देन द कॉलेज दैट यू विल गेट इज जेएसएस। जेएसएस का जो मीडियन सैलरी है दैट इज अराउंड 4 एलपीए। ओके, सो नाउ आई जस्ट गो वेरी क्विकली इनटू अदर कॉलेजेस। अगर आपकी रेंज 60-70 मार्क्स आ रही है विच इज लेस देन 50% मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, तो अब यहाँ पे आपको चॉइस करना है। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आप अपने स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हो और आप अपने स्टेट के टॉप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हो। देन इट इज नॉट रियली नेसेसरी कि आप यहाँ हो। यू कैन हैव अ केस ऑन केस एनालिसिस एंड देन यू कैन लुक इनटू इट। ओके, कैम्ब्रिज में अगर आप बात करो तो कैम्ब्रिज में जो है 60% प्लेसमेंट है, बट अगर आप फिर भी देखो तो इनका 4.8 lakhs पर एनम का मीडियन सैलरी है विच इज अ लिटिल हायर और देन अदर कॉलेजेस इफ यू टेक योर लोकल कॉलेजेस। बट हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में फिर पैसा कम लगता है, सो दैट कैन बी ऑप्शन विच यू कैन टेक। एंड सीएस का इनका जो है दैट इज 5.5 lakhs पर एनम। क्राइस्ट बहुत अच्छा कॉलेज है बट अगैन ये एमबीए के लिए ज्यादा फेमस है, या फिर आप अगर ग्रेजुएशन की बात करो तो बीबीए के लिए ज्यादा फेमस है। इंजीनियरिंग के लिए नया है अभी, तो उतना वेल डेवलप्ड फैकल्टीज इनके पास अभी नहीं है। DSATM जो है ये है दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्निकल एंड एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो गुड कॉलेज और SJB इज अ गुड कॉलेज। हियर यू हैव BMS ITM। BMS ITM जो है इसका रैंक जो आता है 169 पे है। ये BMS का ही दूसरा पार्ट है। इसका जो प्लेसमेंट्स होते हैं दीज आर विद BMS। अगर इसके अलावा आप गीतम और ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी देख सकते हो अगर आप इस रैंक में आ रहे हो। कुछ अदर गुड कॉलेजेस के बारे में बात कर लें हम लोग। अदर गुड कॉलेजेस इन कॉमेट के और इन कर्नाटका। न्यू होराइजन जो है ये नॉट थ्रू कॉमेट के, ये कॉमेट के थ्रू नहीं है, ये कॉमेट के थ्रू नहीं है। न्यू होराइजन का जो
प्लेसमेंट है, ये लोग बोलते हैं 6 इंटरनेशनल प्लेसमेंट इनके हुए हैं, प्लस इनको इनका जो मीडियन सैलरी है वो 5 lakhs पर एनम है, तो इनका आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, दिस इज नॉट थ्रू कॉमेट के, और इनका जो हाईएस्ट है दैट इज अराउंड 30 lakhs पर एनम, ठीक है। एएमसी जो है अगेन इट इज थ्रू कॉमेट के, इसकी जो रैंक है दिस इज 250 to 300, आप मान के चलो यूपी के भी जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एमपी के भी, राजस्थान के भी, वो सब उनके टॉप कॉलेज इसी रैंक के रेंज में आते हैं। तो आप देख लो टॉप कॉलेजेस जो है बैंगलोर के 10,000 रैंक के बाद रैंक्ड हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड आता है विच इज इन द सेम रेंज कैटेगरी। पेस जो है दो तरीके से ले रहा है, पेस का कॉमेट के कट ऑफ में भी दिया गया, आप उसमें भी देख सकते हो, और एक अलायंस यूनिवर्सिटी आप इसको चेकआउट कर सकते हो, एंड देन यू हैव KLE यूनिवर्सिटी, ओके, एंड देन यू हैव पेस यूनिवर्सिटी जिसका जो है 93 रैंक पर है, बट ये पेसेट के थ्रू लेता है, बट इन्होंने कॉमेट के में दिया हुआ है, इनका कोई और कॉलेज भी है जो कॉमेट के थ्रू लेता है। सो दिस इज एन ओवरव्यू अबाउट ऑल डिफरेंट कॉलेजेस. Do like our video, do subscribe to our channel, and if you want a private session, we charge 350 rupees for 30 minutes and 500 rupees for 45 minutes, and on Sundays we do a live session for making out your profile, assessing your risks, looking into a ranking of your colleges and of your courses. So you can join us Sunday on a live session, or you can book a private session with us at these rates. Our number is 790-523-8907. So this is Sagar Anand. Thank you very much, and subscribe to Career Goal. Thanks a lot.